ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਹਕ ਆਗਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰੀ ਹਰ ਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਰ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਰ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜ ਬੈਠੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੀ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ
ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਡਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੀਤਲ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਈ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੀਤਲ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5-4 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸੰਨ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਆਖਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ।
साध संगत ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸੇ ਸੀਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਿਲ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖੇ, ਡੋਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਮਾਂਜੂ ਸੀ। ਹਮਾਂਜੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਮਾਂਜੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਂਜੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਂਜੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਰ ਤੇ ਹਮਾਂਜੂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਹਮਾਂਜੂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਨਿਡਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਮਾਂਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਾ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹੱਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਖੌਫੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਏਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਸਾਈ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਈਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
फिर अपने मन को पुछो भी इंसाफ कर रहे, इंसाफ करोगे अपने पैगंबर दा ते गुरु गोबिंद सिंह दी तवारीख पढ़ के जे इंसाफ करोगे तो अल्लाह जार खां जोगी कहंदा मैं वादे नाल ये गल कहना भी जे इंसाफ करोगे तो तुहानू सारिआं नू कहना पएगा इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहंदा मैनू यकीन है भी जे इंसाफ करोगे तो ये सारिआं नू कहना पएगा कह दे गुरु गोबिंद सिंह का कोई शानी ही नहीं है। कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शानी नहीं है, कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बराबर का नहीं है। साहिबजादा जुझार सिंह की शहादत प्राप्त कर गए। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने आसन तो उठे, चबारे विच उठे, 14 साल के पुत्र नूं 10 लाख नाल लड़ते हुए शहीदी पाउंदे हुए देखिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एडे वीर रस विच आए, अपने आसन तो चबारे विच उठ पे, जंग विच जाण की तैयारी कर लगे। उधरों भाई दया सिंह आ गए, पौड़ियां चढ़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं शस्त्रां दे नाल तैयार हुंदे रण जोधिया वांग जदों तैयार हुंदे देखिया ते तवारीख से लिखिया भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भाई दया सिंह जी कहन लगे महाराज, हैरान हो के भाई दया सिंह जी कहन लगे महाराज ये की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे उधर शस्त्र पहन रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे मेरे प्यारे भाई दया सिंह जंग विच जाण की तैयारी कर रहा हाँ, शहादत पाउण की तैयारी कर रहा हाँ, शहीद होने वास्ते जान लगा हाँ। भाई दया सिंह हाथ जोड़ के आखन लगा महाराज, महाराज साडे हुंदियां तुसीं अजे ना जाओ। महाराज मेरी बेनती है कि तुहानूं अजे शहीद होने वास्ते नहीं जाना चाहिए, तुहानूं इत्थों जिउंदे जी निकल जाना चाहिए। इन्ना बचन सुन के, इन्नी गल सुन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज वीर रस विच आण के, जाहो जलाल विच आण के भाई दया सिंह के नेत्रां 'च नेत्र पा के आखन लगे दया सिंह खामोश हो जा, तू की कहना चाहुंदा भी मैं उन्हां बहादरां दे कोलों दी लंघ जावां जिहड़े बहादरां ने मेरे तो जाना निशावर कीतियां ने। महाराज आखन लगे इहदे नालों चंगी रण भूमि, चंगा जमीन का टुकड़ा किहड़ा हो सकदा है। एक पासे 10 लाख, दूजे पासे गिनती दे बहादुर। महाराज आखन लगे जिंदगी की सब तो वड्डी सफलता है चंगी मौत। महाराज आखन लगे मैं अपने बहादुरां दी लाशां कोलों जिउंदा लंघना नहीं चाहुंदा। दया सिंह खामोश हो जा। बस गुरु गोबिंद सिंह तैयारी कर रहे सन। भाई दया सिंह पौड़ियां उतर के हेठां आया। आउंदिया सार अजे 1-2 पौड़ियां अजे उपर ही सन। भाई धर्म सिंह नूं आवाज़ मारी, भाई धर्म सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी। हाँ भाई दया सिंह जी। भाई धर्म सिंह ऊपर जाके देखो की भाना वापर चलिया है। भाई दया सिंह की हो चलिया है। सैन भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ने सोचा भी शायद कोई दुश्मना के जरनैल जिमें नार खां ते गणी खां पौड़ी ला के चढ़ लगे सन। गुरु गोबिंद सिंह ने मार दिते सन तीरां नाल। शायद हुण भी कोई जरनैल धोखे दे नाल जां कोई 2-4 जरनैल उपर चढ़ाए होणगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्यारा भाई दया सिंह आखन लगा भाई धर्म सिंह उपर जाके देखो की हो चलिया है। भाई धर्म सिंह हैरान होकर आखन लगे भाई दया सिंह की हो चलिया उपर। भाई दया सिंह आखन लगे भाई धर्म सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज रण मैदान में आप जाण की तैयारी कर रहे हैं। भाई धर्म सिंह बाग जदों बाग होवे कई बारी पतझड़ आउंदी है, कई बारी बहार आउंदी है, पर जे बाग ही मुड्डों पुट्टिया जाए तो बहार किधरों आनी है। भाई धर्म सिंह छेती आ उपर। भाई धर्म सिंह इकला छाला मारदा उपर गया। पौड़ियां चढ़द्या चढ़द्या भाई दया सिंह जी आखन लगे धर्म सिंह आसी दोवें जने बेनती करिए। मेरी बेनती नूं गुरु गोबिंद सिंह ने परवान नहीं किया। चबारे विच चले गए। भाई धर्मन सिंह ने जाके हाथ जोड़ के आख्या है बापू कलगी वालिया, भाई दया सिंह ठीक कहंदा है। महाराज दया सिंह की गल सुनो, मैं हैरान हुन्ना 5 प्यारिਆਂ ਦਾ इन्ना इतफाक, इन्ना सलूक आपो विच। भाई धर्म सिंह नेत्र भर के विरागी हो के आखन लगा बापू कलगी वालिया, हे मेरे पातशाह दया सिंह ठीक कहंदा है। महाराज जे तुसी जिउंदे जी निकल जाओ 10 लाख फौज का लक टुट जाएगा। जे तुसी इत्थे शहीद हो गए 10 लाख फौज घ्यो दे दीवे बालेगी। महाराज दया सिंह ठीक कहंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखणगे धर्म सिंह
मैं अपने बहादुरां दी लाशां कोलों जिउंदे जी लंघना नहीं चाहुंदा। मैं उन्हां दे कोलों दी चुप करके लंघ जावां जिन्हां ने मेरे वास्ते जानां कुर्बान कीतियां ने। मेरे पिछे जिन्हां ने एक ने भी हथियार नहीं सुट्टे, 10 लाख नाल फौज नाल लड़ के शहीद हो गए। भाई धर्म सिंह किहो जिहियां गल्लां करदे हो? गोबिंद सिंह दा इह सुभाਅ नहीं। भाई धर्म सिंह ते भाई दया सिंह थल्ले उतर आए। फिर 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ होर नाल लैके गए। फिर रस्ते विच पौड़ियां चढ़दे चढ़दे गुरमता हो गया। भाई दया सिंह ने आख्या, महाराज आनंदपुर साहब तुसीं एक वारी आख्या सी जिथे तुहाडे पंजां दा फैसला होवेगा उत्थे गुरु दा फैसला होवेगा, उत्थे मेरा फैसला होवेगा। महाराज असी हुण सिख बन के नहीं, महाराज असी गुरु पंथ के रूप च हुक्म करते हैं, बेनती नहीं करते कि गोबिंद सिंह पंथ के सामने पेश होवे। जदों इन्नी गल आखी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने कलगी जिगा हीरियां जड़ी कलगी उतार दी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शस्त्र उतार दिते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साध संगत ये रीत सी जदों कोई पंथ दे पेश हुंदा सी, पंथ दे पेश हुंदा सी ते शस्त्र उतार के हुंदा सी। जे महाराजा रणजीत सिंह काली फूला सिंह दे पेश होया ते अपनी सिरी साहब उतार के पेश होया। पाप के निमरता दा भी मैं इस वेले बिल्कुल निआसरा ते निमाणा ते नताना हाँ। गुरु गोबिंद सिंह नूं दया सिंह जी आखन लगे, महाराज पंथ हुक्म करदा पंथ दे पेश होवे गोबिंद सिंह। उस वेले गुरु शब्द नहीं वरतिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कलगी उतार दी, शस्त्र उतार दिते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने दोवें हाथ जोड़ के आख्या, गुरु खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ गुरु पंथ खालसा जी, गोबिंद सिंह की हुक्म करना चाहते हो? भाई दया सिंह ने आख्या, महाराज गुरु पंथ हुक्म करता है, मुसीबतां ते तुसी बचपन तो 9 साल की उम्र तो सहा रहे हो। महाराज पंथ हुक्म करता है जिथे तुसी साडे पले वास्ते, लोकां दे पले वास्ते, जगत दे पले वास्ते इन्नियां मुसीबतां चलियां ने। महाराज पंथ हुक्म करता है एक मुसीबत होर सहारो। महाराज आखन लगे हुक्म करो। भाई दया सिंह जी आखन लगे, महाराज मेरा कल्ले का फैसला नहीं, कल्ला तो मैं हाथ जोड़ के उतर गया सा। महाराज ये गुरु पंथ का फैसला, पंथ तुहाडे कोलों होर सेवा लैनी चाहुंदा है। गुरु पंथ हुक्म करता है इत्थों जिउंदे जी निकल जाओ। वेखो खालसा पंथ के 5 प्यारे किड्डे साध संगत रब्बी मत बुद्ध वाले सन। ये नहीं आख्या भी गड़ी तो बाहर निकल जाओ। जे ये गल हुंदी ते 5 प्यारे सहबान सोचते सन भी ये हुक्म किया गड़ी तो बाहर निकल जाओ। गुरु गोबिंद सिंह एडे वीर रस विच हन, बाहर जाके शहादत प्राप्त कर जाएंगे भी तुसा ते गड़ी तो बाहर जाने का हुक्म किया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंथ हुक्म करता भी गोबिंद सिंह जिउंदे जी गड़ी ते 10 लाख के फौज के घेरे चों निकल जाए। सिंघां नूं विश्वास ही साडा गुरु समर्थ है, साडा गुरु कर्मकार समर्थ है। जे साडा गुरु चाहे निकलना जिउंदे जी, इन्हां दा वाल विंगा नहीं मुंबई का लाल कर सकता 10 लाख फौज वाले। जदों जफरनामा लिखिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे च कहंदे ने, औरंगजेब देख मेरे रब की करामात, तेरी 10 लाख फौज, मैं इकल्ला। महाराज आखन लगे मेरी छोटी उंगल में रीट नहीं आई, मेरा वाल विंगा नहीं होया, ना पचीदा मूहे ना अरजिंदा तन। अरजिंदा तन कहने मेरे शरीर में चरीट तक नहीं तेरी 10 लाख फौज चाहिए। पर सिखां सिंघां नूं इन्ना विश्वास ते भरोसा कि गुरु गोबिंद सिंह जे चाहे तो 10 लाख फौज चो जिउंदे जी निकल जाएंगे। महाराज गुरु पंथ हुक्म करदा भी जिउंदे जी निकल जाओ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने सिर नवा के आख्या, खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ मैं तेरे सामने सिर झुकाउंदा तुहाडे हुक्म अगे। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे, मैं एक अंतिम रस्म अदा करनी चाहुंदा हाँ। भाई संत सिंह हेठों बुलाओ। भाई संत सिंह बुलाया गया। भाई संत सिंह का मुहांदरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल रलदा मिलदा सी। उस वेले बादशाह ने भी इहो जिहे बंदे रखे हुंदे सन, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल सबब नाल संत सिंह का मुहांदरा बिल्कुल रलदा मिलदा सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, भाई संत सिंह बुलाओ। भाई संत सिंह आवाज़ मारी, भाई मान सिंह ने। भाई संत सिंह आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, भाई संत सिंह अपनी दस्तार खोल। अपनी दस्तार खोल के ओहदे सीस ते सजाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, अपना बाणा उतार।
अपनी पोशाक उतार। भाई संग सिंह ने अपनी पोशाक उतारी। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी पोशाक उतार के आख्या संग सिंह ये पोशाक पहन। अपनी दस्तार संग सिंह नूं पहनाई। अपनी कलगी भाई संग सिंह नूं पहनाई। जफरनामे च गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने उस वेले जिहड़ा सूरज सी काली चादर नाल अपना मुख ढकण की तैयारी विच सी, पाप के रात पै गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने सूरज ने काले बुरके नाल अपना मूँह ढक लिया, पाप के रात पै गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों अपनी दस्तार संग सिंह सजा के उहदे दस्तार ते कलगी सजा रहे सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उधरों कलगी सजा रहे ने, उधरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह भाई दया सिंह होरां वाल नज़र करके कहते ने थोड़ा जिहा मुस्कुरा के, भाई दया सिंह सब कुछ तुहाडे तो कुर्बान कर दिता सी, पर एक कलगी ही रहिंदी सी, वो भी मैं पंथ के हवाले की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी कलगी संग सिंह दे सीस ते सजा के, साध संगत मैं कई बारी अपने आप जी सोच के शर्मसार हुंदा हाँ कि जसविंदर सिंह इन्ना विश्वास भाई संग सिंह ते कि मेरी पोशाक नूं दाग नहीं लाएगा, जिहदे सिर ते मैं दस्तार सजाउण लगा मेरा संग सिंह मेरा सिख मेरी दस्तार नूं दाग नहीं लाएगा, मेरी कलगी नूं दाग नहीं लाएगा। अज साडे दे करतूत हैगी कि मेरे ते गुरु गोबिंद सिंह विश्वास कर सके मेरी पग ते मेरी पोशाक नूं दाग नहीं लाएगा। सच्चे पातशाह एडा बल ते समर्था ते उच्चा जीवन बख्शो, किसी साडे गरीब बंदे नूं तुसीं माण कर सको मेरे बाणी नूं दाग नहीं लाउणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कलगी सजाई। उधरों साध संगत विचारा करदिया लड़ाई बंद हो गई सी, रात पै गई सी, अद्धी रात होण विच सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखण लगे मेरे नाल 3 सिंह जाणगे, भाई दया सिंह, भाई मान सिंह ते भाई धर्म सिंह। साध संगत ਸਿੰਘਾਂ ने सीस झुकाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर आखन लगे मैं हुण समाप्ति करा, भाई दया सिंह जी मेरे कोल आओ। उस वेले साध संगत 11 सिंह सन, 8 होर भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह। 11 सिंह दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल 12 सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई दया सिंह जी मेरे कोल आओ। चुबारे विच एक झरोखा सी जिन्हों रोशनदान कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे एक कला कला सिंह आओ। भाई दया सिंह जी ए झरोखे दे विचों दी ओ एक तारा देखो। तारा जदों विखाया महाराज ने सारे सिंघां नूं तारा वारी वारी विखाया। महाराज की कहना चाहुंदे हो? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी जिहड़ा मैं तारा विखाया है, गढ़ी तो जदों बाहर जाना है 4 दिशावां ने, साड़ी गिनती भी 4 है, 4 पासे असीं निकलांगे। महाराज आखन लगे मैं भी ते तुसीं तिन्नां भी उस तारे की सेहत रख के चलना। जे सेहत रख के चलांगे तो सवेरे गुलाबे मसंद के खूह ते माशीवाड़े के जंगल तो बाहर मिलांगे, नगर तो बाहर उहदा खूह है। हजूर आखन लगे वो तारे की सेहत रख के आयो, गुलाबे मसंद के खूह ते मिलांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहना चाहते सन ए खालसा पंथ वेखो उधर बाहर पुत्रां दे शरीर पए हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंथ नूं संदेश दे रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहना चाहते सन खालसा पंथ तेरियां भावें 20 संप्रदावां होण 50 संप्रदावां होण, पर सारियां संप्रदावां दा निशाना एक चाहिदा है, खालसा जी के बोल बाले पंथ की जीत। अज दुख की गल है जिन्नियां संप्रदावां ने सारियां पढ़ते तो असीं हैं भी खालसा जी के बोल बाले, आपो तापी पई हुई है। मेरा बोल बाला मेरी संप्रदा का बोल बाला, जिन्ना चिर सारियां दा निशाना एक नाना होया भी पंथ की जित ते खालसा जी के बोल बाले चाहिए ने, जिन्ना चिर निशाना एक ना होया उन्ना चिर कोई कामयाबी हो जाए सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। साडा अजे तक निशाना एक नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह साध संगत मैं एक बचन भुल गया। जदों गुरु गोबिंद सिंह ने कलगी उतारी, शस्त्र उतारे तो गुरु गोबिंद सिंह ने सिर नवा दिता। साध संगत भाई वीर सिंह जी कहते ने भाई दया सिंह वैरागी हो के आख्या महाराज अजे दे पुत्रां दे शरीर भी बाहर ठंडे नहीं होए, असीं तुहानूं फिर अपने सामने खड़े करके हुक्म सुना दिता है। ਸਿੰਘਾਂ ने वैरागी हो के आख्या महाराज
जी नहीं सी करदा तुहानू हुक्म सुनाइए साडे सामने खड़े हो जाओ। महाराज सारी जिंदगी दुखों में लंघ गई, अजे तेरे पुत्रां दे शरीर भी ठंडे नहीं होए ते हुक्म कर दिता सामने साडे सामने खड़ा हो। महाराज तू निमाणिया की तरह साडे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज साडी बेबसी सी, महाराज साडी मजबूरी सी। महाराज जे तुसी इत्थों निकल जाओ साडे वर्गे लखां पैदा कर लोगे, महाराज तैनू कित्थों लियावांगे। महाराज कोल खिमा मंगी खालसा पंथ ने, महाराज सानू माफ करना सी तैनू इन्हां हालातां विच जदों पुत्तर दुनिया तो तुर जांदे ने। कई दिन बंदे उच्ची नहीं बोलते ते कई दिन हमदर्दी करते ने। महाराज तेरे नाल हमदर्दी की करनी सी, असीं ते तैनू नवां हुक्म सुना दिता। उस वेले शहीद होना सौखा सी, बाहर जाना औखा सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर तारे की सेहत विखाल के महाराज आखन लगे, खालसा जी हुण अद्धी रात हो गई है। महाराज आखन लगे मंजिल साडी बड़ी दूर है, पिछे 8 सिंह रहणगे। भाई संग सिंह तुसी चुबारे विच बैठे रहना ताकि दुश्मन नूं भुलेखा लग सके कि गोबिंद सिंह अजे गढ़ी के चुबारे विच बैठा है कलगी ला के। भाई संग सिंह वारी वारी 8 सिंघां नूं अगे 5-5 का जत्था जाता रहा, एक जत्था 8 सिंघां का गया अजीत सिंह का। भाई संग सिंह एक सिंह नूं बाहर शहीद होने वास्ते भेजना ताकि जंग लंबी हो सके। हजूर आखन लगे जो 7 सिंह शहीद हो जान, भाई संग सिंह गढ़ी तो बाहर जाके शहादत प्राप्त करी। साध संग उस वेले किहो जिहा समा होएगा जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल की रणनीति उन्होंने तैयार करके दे रहे हैं। वारे वारे जाइए उन्होंने सिखां तो जिन्होंने सामने मौत के शहीदी लभदी सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल की रणनीति तैयार करके पाप के आ जड़ा दिन गया, इस दिन संग सिंह ते बाकी होर 7 सिंघां की शहादत हुई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज कहते साडी मंजिल बड़ी दूर है। भाई दया सिंह आ जाओ हुण मेरे पिछे पिछे। गुरु गोबिंद सिंह जदों पौड़ियां उतर रहे सन गढ़ी तो बाहर जाने वास्ते, गुरु गोबिंद सिंह महाराज एडे वीर रस विच सन। उस वेले कमान हाथ च फड़ी हुई सी। हजूर सच्चे पातशाह ने एक तीर कढ़ के पत्थे विचों हाथ च फड़िया होया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़ियां दे तबेले विच गए। साध संगत बड़े प्यार नाल पाई वीर से लिखते ने, गुरु गोबिंद सिंह घोड़ियां दे तबेले विच आए, अपने नीले घोड़े दे कोल गए। नीले ने हनेरे विच ही अपने पातशाह प्रीतम दे हत्थां नूं पछाणिया। इस तरह हत्थां नूं चुम रिहा सी जिवें प्यार दे नाल मैं बापू कलगियां वाले हाथ ही अपने मूँह च पाला। गुरु गोबिंद सिंह ने उहदे मत्थे ते हत्थ फेरिया, कंध ते हत्थ फेरिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह बड़े प्यार नाल कहन लगे, चंगा भी नहीं लिया, तू मेरा बड़ा साथ दिता है, हुण मेरा ते तेरा इत्थे विछोड़ा पैन लगा है। भाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, थापड़ा दे के चंगा भी नहीं लिया, मेरा तेरा हुण इत्थों तक साथ सी। भाई वीर सिंह कहंदे ने घोड़े ने इस तरह समझ लो बोली समझ के अपनी कमर नीवी की, जिवें घोड़ा ये कह रहा होवे पातशाह बैठ मेरे ते पलाकी मार के, महाराज पैंडा बड़ी दूर है, महाराज जिथे तू जाना वो मंजिल बड़ी दूर है, महाराज कंडे बड़े हैं। महाराज जिवें घोड़ा कमर नीवी करके महाराज के सीने नाल सिर ला के कह रहा सी अपनी बोली विच, महाराज जिवें चढ़दा हुंदा मेरे ते पलाकी मार के, छाल मार के एक सेवा का मौका होर दे, पातशाह तेरी मंजिल बड़ी दूर है। महाराज मैं तो तेन नंगे पैरी किते नहीं देखिया, महाराज तू जोड़ा भी उतार दिता है, एक बारी बैठ मेरे ते पलाकी मार के 10 लाख फौज के उत्तों च उड़ा के तेनों लै जावांगा। पर घोड़े की बोली समझ के बापू कलगियां वाले ने आखिया, नहीं नीलिया, मैं अपने शहीदों के कोलों दी घोड़े ते चढ़ के नहीं जाना चाहता। नीलिया हुण मेरा ते तेरा साथ इत्थों तक सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज गढ़ी दे दरवाजे वाल नूं आए। भाई धर्म सिंह ने देखा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े वीर रस विच हन। भाई धर्म सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे वीर रस विच वेख के आखिया, महाराज बाहर 10 लाख फौज है, महाराज सानू चुप करके बाहर निकल जाना चाहिए है, चुप करके निकल जाना चाहिए 10 लाख के घेरे चों। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वीर रस विच आण के आखन लगे, धर्म सिंह मेरा नाम गोबिंद सिंह है, चुप करके नहीं जावांगा, तू दरवाजा खोल ते मेरे करतार दे रंग देख। दरवाजा खोलिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह आस्ते नाल आखन लगे, गढ़ी दे इस पासे फौज नहीं है। महाराज आखन लगे, तुसी इस पासे नूं तिन्ने निकल जाओ,
मैं इस पासे जावांगा जिधर 10 लाख फौज है। महाराज आखन लगे गढ़ी तो बाहर जाके वखरे वखरे हो गए तिना दिशावां वाल हो जिओ। महाराज सच्चे पातशाह ने एक अपनी कमान ते तीर चढ़ाया। दूर एक मसाल जगदी सी, ਜਿਹੜਾ मसाल जी घूम रहा सी, मसाल जगदी हुई दा निशाना बन के तीर मारिया। मसाल बुझ गई, मसाल जी दे मूँह विचों दी तीर लंघ गया, मसाल भी बुझ गई, मसाल जी भी मर के डिग पिया। दूसरी मसाल जदों दूर जगदी सी उन्होंने भी गुल किया ते मसाल जी नूं मारिया। हाल पाड़िया मच गई, मसालां बुझ गईयां। जदों तीर वजे ते उस वेले हाहाकार उन्होंने मर लग्या मचाई, हफड़ा दफड़ी पै गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह फिर 10 लाख फौज के घेरे विचों निकल गए। सच्चे पातशाह महाराज अज माछीवाड़े के जंगल विच हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल रात के दीवान में साझा करांगे। वो रस्ता वो पैंडा बड़ा बिखड़ा है, जिहड़ा पैंडा ते रस्ता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने नंगे पैरों नाल तय किया। कल रात के दीवान में गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करके आप जी के चरण परसांगे। फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार।